उदरे नवः स्त्रियाणां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाशिगो भवेत् अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचयातये नमः। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। कल का विषय आवर्तन आप लोगों ने किया है, कोई कराना चाहेगा? हाँ बोलो। કાલે આપણે ભક્તો સર્વેશા મેલ અધિકારથી જોયું. એનો મીનિંગ કે ભક્તિમાં બધાનો અધિકાર છે. પછી ત્યારે આપણે પ્રહલાદજીનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે આ પ્રહલાદજી કહેવા માંગે છે કે વિષ્ણુની ભક્તિમાં તો બધાનો અધિકાર છે. જે પુરુષ વિષ્ણુની ભક્તિમાં શ્રવણ આદિનો ઉપયોગ કરે છે તે. પછી ત્યાં આપણે સુર અસુર અને આસુર વેચીને દેવી આસુરીને લીધું હતું આગળ કે કઈ રીતે થાય એમ. તો સુર આસુરી એટલે કે યોની એમ કે હિરણ્યાક્ષ, અને દેવી આસુરી ને પુષ્ટિ દેવી આસુરી એમ કે જીવ એમ. પછી આગળ આપણે એ લીધું હતું કે પ્રભુ છે ને એ બધાનો ફલાંત ઉદ્ધાર કરે છે એમ, જે જીવ હોય છે એનો જીવ માત્ર. તો પછી આગળ એવો પ્રશ્ન હોય હતો કે હિરણ્યાક્ષને એનો કેમ ઉદ્ધાર ન કર્યો? તો પછી ત્યાં સુભદ્રીજીમાં ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરી હતી કે એવું કીધેલું હતું કે મેં ઠાકોરજી એને દાંત વડે કે નખ વડે કે એમ માર્યા છે તો એનો ઉદ્ધાર નથી કર્યો એમ, એટલે એનો બીજો જન્મ થયો છે એમ. પછી પુંસાની વાત થઈ હતી ત્યાં. તો પુંસા એટલે કે પુરુષ એમ. તો આપણે સનાતન ધર્મમાં પુંસા એટલે કે જીવ માત્ર લેવાનું છે. પછી નવવિધ ભક્તિ સ્વરૂપમાં આપણે લીધું નવધા ભક્તિમાં. તો પેલું શ્રવણ લીધું હતું. તો શ્રવણ ભક્તિ કોને કહેવાય તેમાં લીધું હતું તો ભગવદ્ય વક્તાના મુખથી ભગવાનના જન્મ, તેનું નામ અને તેની ભક્તિને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળવી તેને શ્રવણ ભક્તિ કહેવાય છે. એટલે કે સાંભળવું અને સુનવું શ્રવણ ભક્તિની અંદર જ આવે છે. હવે શું સાંભળવું? તો જે વ્યક્તિ ભગવદ્ય ભક્તિ હોય એના મુખમાંથી ભગવાનની વાણી નીકળે તે સાંભળવી. હવે શ્રદ્ધા આકર્ષણ કીધું હતું. તો શ્રદ્ધાયા એટલે કે સત્યનો સ્વીકાર એમ. તેમાં ધા એટલે કે ધારણ કરવું. જે કહેવાય તે શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે સાંભળી અને સ્વીકાર કરવું. એમાં ક્વેશ્ચન રેઝ ન કરવો. ત્યારે એક્ઝામ્પલ આપણે આપ્યું હતું કે ઠાકોરજીની રાસલીલાનું વર્ણન થતું હતું. તો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે ઠાકોરજી શું કામ આટલી બધી પોસ્ટરી સાથે રાસલીલા કરે છે? તો ત્યારે જ મહાપ્રભુજીએ ગ્રંથ બંધ કરી દીધા હતા. હા, તેવા આપણે ક્વેશ્ચન પૂછવાનો આપણે અધિકાર નથી. આપણે ઠાકોરજીની જે લીલા છે ને એક્સેપ્ટ કરીને એન્જોય કરવાનો જ અધિકાર છે. પછી આનું પ્રમાણ શું છે? તો જેના હાથમાં ચક્રપાણી એવા ભગવાન એ લોકમાં પ્રગટ થયા છે ને જે કાર્ય કર્યું છે એ સાંભળવાનો વિષય છે અને સાંભળવું જ જોઈએ આપણે. ભગવાનના જન્મ અને તેના કર્મ સાંભળવા જોઈએ. પછી અહીંયા લાલુ ભટ્ટીને રાજાએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે તમે તો કથાને નામ જ સાંભળવાનું કીધું છે અને મહાપ્રભુજીએ તો બધું વર્ણન કર્યું. ત્યારે લાલુ ભટ્ટીએ કીધું કે મેં જે તમે બે વસ્તુ કીધી એમાં બધું જ આવી જાય છે, જન્મ, સ્તુતિ ને બધું. હું તમને ખાલી સેમ્પલના રૂપમાં કહું છું. પછી કીર્તન ભક્તિ આવે છે.
એટલે કે ભગવાનના નામપૂર્વક કર્મ સ્તોત્ર આદિનું શ્રદ્ધાથી કથન સારી રીતે કરવું તે કીર્તન. એનું પ્રમાણ શું હતું? તો ગુણાંતી ગુણમાની કૃષ્ણ ત્યાગનું સ્મરણ કીર્તન. એટલે ગુણાંતી એટલે કે ગણગણાવો એમ કાંઈ પણ. તો ગુણાંતી કે બાદ એનું સારી રીતે અનુસ્મરણ કરવું એમ ઠાકોરજી. તેમાં એક્ઝામ્પલ તમે આપ્યું હતું કે ગોવાળિયાને બધા ગાયો ચરાવીને આવતા હતા તો અંદર ઠાકોરજીની લીલાનું સ્મરણ કીર્તન કરતા હતા કે ઠાકોરજી કઈ રીતે ગાયો ચરાવીને એ કીર્તન. પછી એમાં તમે કીધું હતું કે ગીત વેણું રણુ ગેડી એટલે કે ભગવાનના ગુણગાન અને ગીતનું કીર્તન કરવું. કીર્તનના જે વિષય છે ભગવાન તે સારી રીતે કરવું, ભગવાનના વિશે કરવું. પછી સ્મરણ, ભગવાનના સ્વરૂપ, લીલા, પરિકર આ બધાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક ચિંતન કરવું, સ્મરણ કરવું. એનું પ્રમાણ હતું સ્મરણતઃ સ્માર્યંતસ્ય એટલે કે સુનવું અને સુનાવ, યાદ કરવું અને કરાવ એમ. પછી પ્રભુના સ્મરણથી લોકોને આનંદ અનુભવવો જોઈએ. એ ઉદ્ધવજીને ગીતામાં વચનમાં કહ્યું છે કે પ્રભુના રૂપ અને લીલા આદિનું સ્મરણ કરવું. માઇક એકદમ સામે રાખ મોઢા. 5:7 નિરંતર શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનની પરિચર્યા કરવી એટલે પરિચારકી કરવી એટલે કે પુષ્પમાલા, સાફ સફાઈ તે બધું. તેને 5:7 ભક્તિ કહેવાય છે. એક્ઝામ્પલ પછી તમે આપ્યું કે 5:7 એટલે કે લક્ષ્મીજીનું આપ્યું હતું કે પોસ્ટરમાં લક્ષ્મીજી 5:7 કહેવાય તો ખાલી પગ દબાવ જ નહીં પણ બધી ભક્તિ આવી જાય 5:7 એમ. પછી નારદજી સપ્તમ સ્કંદમાં નવધા ભક્તિ બતાવી છે ત્યાં 5:7 ની બદલે સેવેજ્યા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. સેવેજ્યા એટલે કે સેવા પ્લસ ઈચ્છા એટલે કે પરિચર્યા. અર્ચનમ ભક્તિ એટલે કે પ્રભુના મહાત્મ્યને જાણીને પ્રભુ અલૌકિક છે, લોકમાં વિલક્ષણતા છે, તેને ઉત્તમ પદાર્થને પ્રભુને સમર્પિત કરવું. કાંઈ પણ લોકમાં જે ઉત્તમ વસ્તુ છે એને પ્રભુને આપણે સમર્પિત કરવું એ અર્પિત ભક્તિ છે આપણી. અર્ચનમ ભક્તિ. વંદન આપણા અંદર દૈન્યનો આવિષ્કાર કરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક નમવું તે વંદન છે. અને સાથે સાથે આપણે કદાચ નામ પણ બોલી લે કે નમામી તો આપણે આંતરિક, કાયિક અને વાચિક ભક્તિ થઈ જાય છે ત્રણેય સાથે. દાસ્ય કે હવે પ્રભુને છોડીને મારે ક્યાંય જ જવું નથી, તે દાસ્ય ભક્તિ આપણી. સખ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુને અપ્રેરિત પ્રિયકરણ કીધા વગર પ્રભુને ગમે તેવું કરવું. એટલે કે પ્રભુએ આપણને કીધું નથી કે તું મારા માટે આ કર, પણ આપણે સામેથી કરી એ સખ્ય ભક્તિ છે. એમાં જે કહ્યું ને છોડીને જવું નથી એનો તાત્પર્ય સમજવું જોઈએ કે દયારામભાઈના પદથી આપણે સમજી શકીએ એક વર્યો ગોપીજન વલ્લભ નહીં સ્વામી મારે બીજો રે. તો આ નહીં સ્વામી મારે બીજો રે એ અનન્ય ગામિત્વ છે. એટલે આપણે उस संबंध में अपने कल प्रश्न पर विचार हुआ था, तब ये कहा था कि हम किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो नौकरी के लिए हम जाते हैं, लोक में वो हमें हमारी आवश्यकता को पूरी करते हैं, हम अपना श्रमदान उसको करते हैं, तो उसमें वो अन्यगामित्व का दोष नहीं माना जाएगा. क्योंकि आप आजीविका के लिए कहीं जा रहे हैं और उनकी नौकरी चाकरी कर रहे हो, उसके कारण आपका भगवत दासत्व है वो खंडित नहीं होता है. पर किसी को आपने भगवान मान लिया, तुम ही हमारा पेट भरते हो, तुम ही मुझे रोटी देते हो, तुम ही मेरे भगवान हो, तब फिर वो अनन्यता खंडित होती है. हाँ. પછી તમે સખ્યમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છું કે કોઈ બે ફ્રેન્ડ ગાર્ડનમાં ગયું હોય તો એક ફ્રેન્ડ બેઠો હોય તો બીજો ફ્રેન્ડ એના માટે પહેલેથી જ રૂમાલ પાછળ દે કે એના કપડા કે ખરાબ ન થાય, સખ્ય ભાવ છે. પછી ભગવાનની સાથે સખ્ય કઈ રીતે સ્થિત થાય છે તો કે સુહૃદ હૃદયથી, એમ કે સારું હૃદય હોવું જોઈએ, એમ તેનું હૃદય સારું છે, શુદ્ધ છે. પછી ભગવાન એવું કહે છે કે મુજે તુમ શુદ્ધ જાણો અને મને તમે સખ્ય જાણો એમ. પછી ત્યાં ભગવાન એમાં કહે છે કે ભગવાન હું પૂરા વિશ્વનો મિત્ર છું એમ. પછી ગીતાજીમાં પણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું મને તારો મિત્ર માન એમ. પછી સખ્યતા હોય છે કોઈને મિત્ર માને એને પૂછ્યા વગર જેનું હિત કરે. તે ઉદ્ધવજીનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે નાનપણથી જ ઉદ્ધવજી ઠાકોરજીની પ્રેરણા વગર ઠાકોરજીના હિતમાં બધું કરતા
એકવાર તેના મમ્મી તેને પ્રસાદ લેવા બોલાવતા હતા તો પણ એને ભાન નહોતું, ઠાકોરજી સાથે કહેતા હતા. પછી ભગવાન જ્યારે ગોચારણ લીલા કરીને ગોચારણ લીલા કરવા જાય છે ત્યારે બહુ ધૂપ હોય છે, તો ગોપીજનો વાત કરતા હોય છે ત્યારે ક્લાઉડ જાતે આવીને છાયો કરી દે છે, તે એનો સખ્ય ભાવ છે. પછી મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ? તો હાથ જેવો કે તમે કીધું હતું કે કોઈ આપણને વાર કરવા જાય તો આપણો હાથ પહેલેથી આવીને આવી જાય, કંઈક આપણી આંખમાં કંઈક કચરો કે કંઈક જતો હોય તો એ આપણે હાથ આવીને રોકી લે. તો મિત્ર એવો હોવો જોઈએ કે કીધા વગર જ બધું કરી દે આપણને. પછી સખ્ય શબ્દ છે જે નવધા ભક્તિમાં આવે છે, એનો મિનિંગ કે બિના પ્રેરણા કે જે ભાવ આવે સારું કરવાનું કોઈનું, એને સખ્ય ભાવ કહેવાય. પછી વ્યાકરણ તથા હા, ત્યાં લાસ્ટમાં ધીર સ્વામીએ કહ્યું હતું કે સખ્ય એટલે કે વિશ્વાસાદી સખ્ય એવો હોવો જોઈએ કે જેની ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરી શકીએ. એમાં આદિ શબ્દ લીધું હતું કે તો આદિ શબ્દને આપણે એ રીતે જ સમજવાનું છે કે અપ્રેરિત પ્રિય કરનાર. એટલે આપણે વ્યાકરણનું જોયું કે આપણે કોઈ પણ શબ્દ હોય એને 5 ટર્મથી સમજી શકીએ. વ્યાકરણ, ઉપમાન, કોશ અને કોશ, આપ્તવાક્ય અને વ્યવહાર. सुंदर. कोई विषय छूट गया हो या अन्यथा निरूपण हो गया हो तो हाँ दीजिए माइक. प्रणाम जी. देखिए, दास्य और सख्य एक साथ कैसे हो सके? दास्य और सख्य तो अलग अलग भाव है, तो एक साथ वो दोनों अलग अलग भाव कैसे हो सके वो थोड़ा समझना चाहिए. हाँ बोल. नमस्कार जी. तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि सख्य भक्ति है तो उसमें ऐसा होता है कि अप्रेरित हम प्रभु को जो प्रसन्न करें प्रभु, तो वो अप्रेरित हम उनसे सख्य भाव करें. पर जैसे कि हम परिचर्या करते हैं तो वो दास्य भक्ति में आता है कि हम प्रभु के दासत्व में करें, तो वो दोनों अलग अलग है पर वो एक साथ हो सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है. दास भावना रहेगी तो मित्रता कहाँ से आएगी? उसमें दास भावना रहेगी कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका चाकर हूँ, तो उसमें हाथ में हाथ मिला के मित्रता वाली बात कहाँ से आएगी? कैसे एक साथ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. डरने की बात नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं. मतलब यहाँ पे सख्य भाव का जैसे कल जेजे ने बताया कि ये मित्रता एक है, पर ये इस साइड जा रहा है कि जो अप्रेरित प्रभु को जो अच्छा लगे वो बिना किसी के भी प्रेरणा से हम पहले से वो प्रभु के लिए करके रखे, वैसे में सख्य भाव बताया गया है. वैसा नहीं कि मतलब प्रॉपर उस मित्रता से नहीं बताया गया है. सख्य भाव यानी कि जैसे कल पूरा हमने वही डिस्कस किया कि प्रभु को कुछ भी, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने उद्धव जी का एग्जाम्पल देखा था, तो वो उनकी माता ने उनको प्रसाद लेने के लिए बुलाया था, पर फिर भी वो प्रभु के साथ थे क्योंकि उन्हें अंदर से मतलब प्रेरणा किसी ने भी नहीं की थी, पर फिर भी वो प्रभु के साथ थे. तो उनसे वो सिर्फ सेवा के भाव से सख्य भाव है, पर वो ऐसी लौकिक मित्रता के हिसाब से नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. चलो प्रणाम जी. अभी ये जो नवधा भक्ति हम देख रहे हैं, नहीं, ये दूसरा प्रश्न है या इसी के संदर्भ में हाँ कि यानी कि दो भक्ति कभी भी एक साथ नहीं होती है, हम देख सकते हैं. अगर आप श्रवण करो तो साथ में स्मरण या कीर्तन नहीं कर सकते हैं, तो एक भक्ति एक ही साथ यानी एक टाइम पे एक ही भक्ति हम कर सके हैं. तो इनका जो प्रश्न है कि दास्य और सत्य साथ में कैसे हो सके, तो एक तो है कि वो दोनों साथ में तो नहीं हो सके. अगर आप दास्य है तो दास्य भक्ति ही चलेगी, सत्य है तो वहाँ पे सत्य भक्ति ही चलेगी. और ऐसे वैष्णव या भक्त का यही धर्म है कि हमें दास्य का हमें यानी लेकर चलना है. सत्य तो प्रभु प्रदान करें तब सत्य भक्ति होगी, और ऐसा नहीं कि एक बार सत्य दे दें तो हम सत्यता में ही वही भक्ति करें.
दास धर्म हमें वापस रास्ते में आ जाना चाहिए। जब प्रभु हमें सत्य प्रदान करे तब सत्य, हम भी सेवा प्रणाली में भी देखेंगे जैसे कि सत्य यानी कुछ ऋतु में हम सत्य भाव प्रकट करें, फिर जैसे होली आदि में, उसके बाद फिर वापस पंचामृत करके फिर वापस हम दास्य में स्थित हो जाते हैं। तो यानी दोनों साथ में तो कभी नहीं होगी, एक साथ ही या तो दास्य या तो सत्य ऐसा चलेगा। धन्यवाद। जय जय दंडवत प्रणाम। प्रश्न तो आपका ठीक है कि लौकिक में भी ये तो देखते ही हैं कि जिसके हम दास हैं तो उसके साथ गल भैया कैसे कर सकते हैं, ये बात तो आपकी ठीक है। लेकिन महाप्रभु जी की अगर चतुश्लोकी देखें तो चतुश्लोकी में सर्वदा सर्वभावे है। हमारे यहाँ एक संसारी भाव होता है, एक स्थायी भाव होता है। तो वो जो दास से भाव है वो हमारा स्थायी भाव है। अब प्रभु गोचारण में जा रहे हैं तो हम उसका भाव का भावन करते हैं। तो जो ये दूसरे जो सखा भाव है वो हमारा संसारी भाव है। मतलब जैसे आपने कल संसारी और स्थायी भाव का बताया था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि अगर ठाकुर जी गोचारण के लिए जा रहे हैं और आप दास हैं तो फिर उनको गोचारण के लिए प्रभु को प्रस्थान कैसे करेंगे। वो आपको भाव तो लाना ही पड़ेगा सखा का, कि प्रभु का वो सारा साथ श्रृंगार और जिस तरह से पधार रहे हैं वो उनका सारा करके सखा भाव से उनकी सारी तैयारी करनी है। तो प्रभु पधारेंगे फिर वृंदावन के लिए, तो वो भाव का भावन है स्थायी और संचय। और मतलब चतुश्लोकी में भी आप श्री ने ये बताया सर्वदा सर्वभाविना, उस समय भी यही प्रश्न आया था कि भाई ये किस तरह से होगा। तो महाप्रभु जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि वो आपको उस तरह का भाव का भावन करना है, सब भावों से करना है। और उसके अंदर जो है स्थायी भाव तो हमारे लालन है, तो वो तो स्थायी भाव है आपका। लेकिन गोचारण के लिए भी भेजना है, फिर रास लीला भी कर रहे हैं ठाकुर जी, फिर और लीला कर रहे हैं, तो फिर हम दास से बन के रह के और फिर और दूसरी लीलाओं का आनंद कैसे लेंगे। मुझे देखिए इसमें खाली एक ऐसा विचार आ रहा है कि हम जब भक्ति पर जोड़ रहे हैं हर एक के साथ, तो भक्ति की अगर हम डेफिनेशन करें तो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वोत्तम स्नेह, तो वहाँ तो महात्म्य ज्ञान अपना है। मतलब उसके अंतर्गत हम ये जो भी 9 विधा कर रहे हैं, 9 प्रभु के प्रति हमारे जो भाव है, वो अल्टीमेट तो भक्ति के शेड में आ रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली तो भक्ति है। तो जैसे पास भाई पूछ रहे कि हाथ से हाथ कैसे मिला है हम, और दास्यता चाकरी कैसे करें, तो हम वो सत्य बना जाके, मुझे ऐसा लगता है लालू भट्ट जी ने परिभाषित कर दिया है कि सत्य को दूसरा कुछ सत्य नहीं समझ के अप्रेरित प्रिय करणम, उसी को सत्य समझे। मतलब हाथ मिलाना, ऐसा अभी हम सत्य की डेफिनेशन बाहर हो सकती है, पर अगर हम जहाँ अभी पढ़ाई करें तो उसमें तो कभी दास हो, राजू भाई ने एग्जाम्पल दिया था कि हाथ में छाता लेके बाजू में चल रहा है, तो दास को आज्ञा दो तो वो छतरी खोलेगा। लेकिन कभी दास को वो अप्रेरित के उसने बूंद देखी, उसके पहले ही छाता खोल दिया, तो दास में वो अप्रेरित प्रिय करणत्व का अगर भाव प्रकट हो गया तो सत्य है। मतलब तो दास और सत्य ऐसे साथ हो भी सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमको सत्य में लौकिक का सत्य ना देख के लालू भट्ट जी ने जो परिभाषित किया है उसके तक अगर हम सीमित रखें तो दोनों साथ हो सकते हैं, ऐसा मुझे। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे दोनों जो दास्य और सत्य जो भाव है, बहुत उसमें छोटी सी 3 लाइन है। यहाँ दास्य की बात करते हैं, वहाँ कर्तव्य की बात आ रही है कि अपने प्रभु के प्रति अपने कुछ कर्तव्य है। और जहाँ सत्य की बात आ रही है वहाँ पे तत्सुख को विचार आ रहा है कि प्रभु की सुखाट को यहाँ पे विचार कर रहे हैं। तो दोनों जो बात है उसमें अपने को ऑलवेज सेवा में बैलेंस करना पड़ेगा। इतनो बनो भी दास बनो, इतनो भी सत्य भाव नहीं करना चाहिए कि जिससे अपना दासत्व हो जाए, और इतनो भी दासत्व नहीं होना चाहिए कि प्रभु के साथ जो सत्य भाव दस सुख के विचार ही न जाए। तो अपने को ये दोनों साथ में लिख सके कि दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है। हाँ, इन्होंने जो बताया कि दोनों साथ में करने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम मन से या क्रिया से दास्य भाव प्रकट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो हमारी अंतर मन की फीलिंग होती है, उससे हम सत्य भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि हम अगर डंडा रोपण करते हैं तो डंडा जो रोकते हैं वो दास्य भाव से करते हैं। फिर उसने जो ध्वज का आरोहण किया
वो सख्य भाव मतलब एक ही चीज़ है, वो अलग एक्सप्रेशन हमें अपने मन से ले आना है। डंडा कौन सा? ध्वज ध्वज का अगर हम रोपण करते हैं हाँ हाँ। तो उसमें पहले हम डंडा ये करते हैं, स्थापन करते हैं, तो वो दास्य भाव से करेंगे। और उसमें ध्वज जो उस पे मतलब है एक ही चीज़, पर हमें अपने मन से वो एक्सप्रेशन उस तरह से करने हैं, जैसे हम मन से दास्य भाव करने और अपने अंदर आत्मा की जो फीलिंग है, जो भाव है, उससे हमें सत्य भाव का प्रकट करना है। अच्छा, हाँ बोलो। जैसे कि राजेश अंकल ने बताया कि एक थीन लाइन है, तो वो थीन लाइन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक आदर भाव है, मतलब एक फ्रेंडशिप है और फ्रेंडशिप में एक आदर भाव भी रहता है, एक रिस्पेक्ट भी रहती है। जैसे हम अर्जुन जी का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं कि वो कृष्ण भगवान को अपने दोस्त भी मानते थे और जब जरूर पड़ने पर उनको विनम्रता से आदर भाव से गाइडेंस भी लेते थे, तो वैसा मुझे लग रहा है। दंडवत प्रणाम दीदी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दास्य तक का जो हम पहुंच सकते हैं, अपनी कुछ प्रयत्न से दास्य हम कर सकते हैं, दास्य तक की भक्ति। उसके आगे जो सख्य और आत्मनिवेदन है वो प्रभु दत्त है, ऐसा हम कहते हैं, तो प्रभु सिद्ध कराते हैं। तो दास्य तो हमारा है ही। सख्य अगर भगवान प्राप्त कराते हैं तो तब हम उनको मतलब वो भाव हमें प्रकट होता है, अगर प्रभु कराते हैं तो वो भाव हमें आता है, तो फिर तो वो हमारे करने की बात नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रभु दे रहे हैं तो फिर वो तो अपने आप हो ही रहा है। और दूसरा दास्य जो है वो दास्य तो है ही, वो कहीं जा नहीं रहा है, पहले दास्य है तो ही प्रभु ऐसे प्राप्त करा रहे। तो दोनों भाव, पार्थ भाई ने जो कहा कि दोनों भाव एक साथ, तो इस तरह से रह भी सकते हैं दोनों भाव एक साथ, ऐसा थोड़ा समझ में आता है कि प्रणाम। चलो जी। पर ये मुझे ऐसा लगता है कि बहन ने जो बताया हेलो उसमें अगर सिर्फ दास्य भाव ही रहेगा तो वो औपचारिकता हो जाएगी ना। अगर साक्ष्य भाव नहीं रहेगा तो उनके पीछे की जो डेडिकेशन है या अपना जो भाव है वो प्रकट हो ही नहीं पाएगा। राजेश भाई ने जो थीम लाइन प्रॉपर है कि मुझे आगे भी नहीं बढ़ना और पीछे भी नहीं रहना, दासत्व भी स्वीकार करना है, पर सख्य भाव से ही वो दासत्व को स्वीकार करना होगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है वो थीम लाइन प्रॉपर वर्ड है कि ना मैं दासत्व से सख्य भाव में अतिशयोक्ति करूं या दासत्व में भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना रहूं ऐसा। और सिर्फ दासत्व रहेगा तो वो फिर औपचारिकता ही रह जाएंगे। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दास्य भाव ही कल्मिनेट होकर सख्य भाव में होता है, कि जब दास पहले परिचर्या में आता है तो स्वामी उसे डायरेक्ट करता है कि ऐसे ऐसी सेवा करनी है या ऐसा ऐसा करना है, तो उस हिसाब से करता है। फिर वही दास्य जब उनके जो स्वामी हैं उनके हित के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी करते हैं वो सख्य हो जाता है उनका, कि भाई उनको प्रसन्न करने के लिए बिना प्रेरणा वो ऐसा कुछ करते हैं जो उन्हें बताया नहीं गया है, तो वो दास्य ही सख्य में कल्मिनेट होता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात। यहाँ पे पुष्टि मार्ग में प्रभु का सुख और प्रेम यहाँ बहुत महत्व है हमारे मार्ग में। तो जो दास्य है, जो दास है, वो एक मैकेनिज्म के चलते है कि भाई हाँ मुझे ये क्रिया करनी है, पर जो सख्य भाव है उसमें हमारा प्रेम आता है, प्रभु का सुख का विचार होता है, इसलिए दोनों साथ में जाने चाहिए। ये तेरी माँ है ना ये? हाँ, दोनों ने मिलके अच्छा। जैसे यहाँ पे हम लालू भट्ट जी का अगर क्रमशः देखें कि पहले दासस्य अन्यगामी तत्व कहा है, तो वहाँ पे हमें दास भाव का जो दास भावना से पूरी सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक अगर दासत्व सिद्ध हो जाता है और फिर उस दासत्व में जैसे अप्रियता आ जाती है, जैसे राजेश भाई ने कहा अप्रियता दासत्व के साथ, तो प्रियता कैसे? मतलब कि तत्सुख का विचार कर लिया, जैसे और
अप्रेरिता हाँ हाँ अगर उसमें आ जाता है तो फिर वो दोनों एज अ कॉम्प्लीमेंट्री साथ में जाएंगे। हाँ हाँ बोलो। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नौदा भक्ति है वो एज ए टोटल लेना चाहिए, हम लोग को ऐसे वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स नहीं करने चाहिए कि दास्य अलग सख्य अलग, एज अ होल लेना चाहिए। उन्होंने बताया वैसे ही सर्वदा सर्व भावेना बताया है तो वैसे ही करना चाहिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कोई राजा है तो हम लोग नॉर्मली जो राजा के यहाँ पे जो उनकी चाकरी करते तो वो दास्य भाव से ही करते हैं, पर कभी कभार सख्य भाव से भी उनके साथ बर्ताव किया जा सकता है कि उनको जो सुख, राजा को जो सुख मिले तो उस हिसाब से राजा के किए पहले ही उनको उन्होंने आदेश दिया, उसके पहले ही जैसे बताया तो वैसे ही छाता खोल दिया, बारिश आई तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वहाँ पे उनका सख्य भाव भी आ गया। कभी मतलब ऐसा होल लेना चाहिए, मुझे ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए कि दास्य भाव ही आया तो फिर सख्य भाव क्यों आज नहीं आया वैसा। अब ये प्रश्न बंसी के ऊपर से उठा है ना, पार्थ ने शुरू किया था, तुम्हारी समझ में क्या आया ये बता दो। मुझे ऐसा समझ में आया कि मतलब दोनों एक साथ रह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक है तो एक नहीं ही होना चाहिए। वो जैसे कि इन्होंने कहा कि सर्वदा सर्व भावेना, मतलब हमारा प्रभु को हम सभी भाव से पूछते हैं, माता पिता, तो जैसे कि हम सभी भाव एक साथ प्रभु को सभी भाव से पूछते हैं तो उसमें दास्य भाव भी आ गया, सख्य भाव भी आ गया। तो जैसे कि अर्जुन का हम एग्जाम्पल ले तो प्रभु उसको ऐसे तो वो सख्य भाव से उसमें थे, अर्जुन प्रभु में सख्य थे, पर जब युद्ध के समय और उनमें जब प्रभु उसकी आज्ञा करते थे तो वो अर्जुन को पूरी भी करते थे, तो वो उनका दास्य भाव भी उधर हो गया था। तो मतलब दोनों एक साथ अगर हम प्रॉपरली मन से करें तो वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मुझे ऐसा समझ है। बहुत से विचार एक साथ छोटे विषय को लेकर हो रहा है, इनको सबको रिकंसाइल करना थोड़ा कठिन है, पर हम यहाँ जैसे राकेश ने कहा वो मुझे इस प्रसंग में ग्रंथकार के निरूपण को लेकर हम चलें तो वो अधिक उपयुक्त लगा, क्योंकि जैसे कल हमने ये देखा था कि सख्य की परिभाषा समानशील व्यसने सुसख्यम ऐसी एक परिभाषा दी जाती है। दूसरी ओर लालू भट्ट जी अप्रेरित प्रिय करणत्वम सख्यम ऐसा कह रहे हैं। अब ये जो दोनों परिभाषाएं हैं, उन परिभाषा में यदि भगवान और जीवात्मा का विचार करें तो दोनों तरह से हम तो फेल होने योग्य हैं, क्योंकि हमारा और भगवान का कोई मेल ही नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, हम चिन्ह मात्र हैं। वो अलौकिक सर्वगुण संपन्न माया का अधिपति है, हम माया के भी एक अंशभूता अविद्या माया, उससे मुक्त अध्यस्त जीवन। भगवान लोक वेदातीत है, हम संसार में लिप्त हैं। तो सभी दृष्टि से देखा जाए तो हमारा और भगवान का कोई मेल नहीं है। तो समानशील और व्यसन का कोई प्रसंग ही नहीं है। भगवान का जो व्यसन अगर हम सोचें तो ऐसा व्यसन पालने का हमारी औकात ही नहीं है। वो व्यसन हम कैसे पाल सकते हैं। दूसरा प्रिय करणत्व का जो प्रसंग है, यदि हम लालू भट्ट जी ने जो यहाँ परिभाषा दी है उसको लेकर चलें तो हम क्या प्रिय कर सकते हैं भगवान का। तो निबंध में महाप्रभु का जो प्रसिद्ध वचन है कि वासनंते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीशते किम वचनीयम अस्ति। भगवान तो ऐसे हैं,
जिनका आसन गरुड़ है, उससे उत्तम आसन हम क्या दे सकते हैं? जिनकी शैया शेष है, उससे अधिक उत्तम शैया हम कहाँ से लाकर दे सकते हैं? जिनका आभूषण कौस्तुभ है, उससे कीमती सुंदर हम क्या आभूषण दे सकते हैं? साक्षात वाणी के पति हैं, हम उनकी स्तुति क्या कर सकते हैं? तो प्रिय करणत्व हमसे संभव ही नहीं है। जिस प्रियता को भगवान सदा सर्वदा भोगते हैं, उस लेवल की कोई वस्तु हम भगवान को अर्पित कर सकें, ऐसा नहीं है। तो प्रिय करणत्व भी वहाँ नल एंड वॉइड हो रहा है। समान शील रूपता भी कहीं से मेल खा नहीं रही है। तो कम से कम जीते जी तो हम कुछ कर सकें, ऐसा नहीं है। अब जब हम देह निवृत्त हो जाए, भगवान हमारे अंदर आनंदांश का प्राकट्य कर दें और अपने समान बना लें, तब जाकर कुछ हम भगवान में प्रवेश करने योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, या भगवत लोक में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले तो नहीं। तो अगर इस दृष्टि से विचार किया जाए तो ये दोनों ही लक्षण यहाँ किसी भी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है, हम कुछ कर सकें ऐसा नहीं है। अब ये बात भागवतकार न जानते हो ऐसा भी संभव नहीं है। यानी नारद या प्रहलाद जो भी यहाँ सख्य भक्ति, दास्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, इन सब का उपदेश कर रहे हैं, अथवा जिन्होंने प्रहलाद जी ने सभी अध्ययन के उपरांत ये समझा कि ये नवदा भक्ति वो उत्तम अध्ययन है, तो अब उन्होंने जो समझा उसका क्या तात्पर्य हो सकता है? अभी हमने जो चिंतन किया वो यदि सच है तो नारद जी झूठा समझे। जो हमको ये कह रहे हैं कि इन भक्तियों को करना चाहिए, करना हो तो हमारे करने योग्य उसका स्वरूप हमें बताना चाहिए, अथवा हम वो करने योग्य हैं इससे सिद्ध होता है। यदि नारद जी और प्रहलाद ऐसे ही फेंक नहीं रहे हैं कोई बात, तो इसका मतलब ये है कि इन भक्तियों को हम करने की योग्यता रखते हैं, तभी तो उपदेश है, अन्यथा अशक्य उपदेश हो जाएगा। तो यदि सामर्थ्य का विचार करें, भगवान की महात्म्य का विचार करें, तो ये कुछ भी कर सकें ऐसा हम नहीं, ये एक सिद्धांत है। पर अब क्योंकि भगवान ने हमको प्रकट ही इसके लिए किया है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम मेरे खेलों में हो, तुम मेरे साथ इस प्रकार से क्रीड़ा में शामिल हो, ये प्रभु की इच्छा है। तो हम नहीं योग्य होते हुए भी भगवान ने यदि इसी प्रयोजन से हमको प्रकट किया है, तो हमें भले ही कुशलता न हो पर उसका अभिनय तो कर ही सकते हैं। तो अभिनय ही करो। तो अब फिर से जो पहली आपत्ति उठाई थी कि किमासनन्ते गरुड़ासनाय इत्यादि वस्तु स्थिति होने के कारण प्रभु का प्रिय करने में हम कुछ भी समर्थ नहीं है, तो ठीक बात है। हमारी सोच समझ से, हमारी भावना से कि ऐसा करेंगे तो हमारे स्वामी प्रसन्न हो सकते हैं, उस सोच को ही लेकर जो कर सकते हो करोगे तो वो प्रियकरण माना जाएगा। जैसे ये बद्दल का उदाहरण दिया, बद्दल तो अचेतन पदार्थ है, उसमें कोई भावना थोड़ी होती है। उसे ये थोड़ी पता है कि यहाँ भगवान बलराम, गाय, ग्वाल सब धूप में जा रहे हैं तो मैं उनके ऊपर छाया करूं। पर ये दृश्य देखकर कि भगवान पधार रहे हैं और ऊपर बद्दल की छाया आ रही है, जिनके भीतर भगवान के प्रति सख्य है, वो श्रुति रूपा गोपीजन ये सोच रहे हैं कि देखो बद्दल भी भगवान का सख्य निभा रहे हैं, अप्रेरित भगवान का प्रिय कर रहे हैं, प्रभु को सुख पहुंचे ऐसा वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो हमारी जो भावना है उसका आरोपण हमने वो अचेतन बद्दलों के ऊपर किया है। इस तरह से
भले ही आदर्श रूप में हमारे पास ऐसा कोई उपचार नहीं है, हमारी न ऐसी कोई क्रिया सामर्थ्य है, न वाणी सामर्थ्य है कि हम प्रभु का प्रिय कर सकें। जो कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। जैसे बड़े आदमी के पास हम जाएं और कुछ उपहार लेकर जाएं, जैसे सुदामा मुरमुरे लेकर गए थे, तो इसलिए नहीं कि उनके मुरमुरे के बिना भगवान का पेट खाली रह जाएगा, भूखे रह जाएंगे, पर हम जा रहे हैं तो एक शिष्टाचार है ऐसा कि हमें अपने प्रियजनों के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। तो इस शिष्टाचार को निभाते हैं, हमारे पास जो सामर्थ्य है उसको लेकर हम वहाँ जाते हैं। इस तरह से जो भी लोक में शिष्टाचार माना गया है उसका उदाहरण यहाँ सुभाषित से दिया ग्रंथकार ने कि हाथ जिस तरह से अप्रेरित ही हमारे देह की रक्षा करते हैं, हमारी पलकें जिस प्रकार से अप्रेरित हमारी आँखों की रक्षा करते हैं, उस तरह से बिना प्रेरणा के प्रिय करना ये सत्य कहा जाता है। तो अब भगवान किससे प्रसन्न है या किससे अप्रसन्न है वो एक अलग सोचने का विषय है, पर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, ये सोच कर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो वो अप्रेरित प्रियकरण है। जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया, अब वो गोवर्धन को सखा अगर अपनी डंडी से वहां पर सहारा न देते तो क्या गिर पड़ता? तो उनके डंडी पर तो वो टिका नहीं था, पर उनको ऐसा लगा कि भाई मेरा सखा इतना बड़ा पर्वत उठाकर खड़ा है तो कुछ न सही ऐसे ही अपन हाथ तो लगा दें, जैसे जारी भरते पीछे सब लोग हाथ लगा देते हैं। आप हाथ नहीं लगाओगे तो जारी नहीं भरेगी क्या? ये एक भाव है, तो ऐसा ही भाव का अनुकरण है, वो तो हम कर ही सकते हैं। अब हमारे पास तो संयोग से ये अपना भगवान वो अल्लाह या गॉड जैसा तो है नहीं कि जो कभी अवतरित हुआ न हो हमारे बीच में। तो भगवान तो अवतरित हुए हैं और अवतरित होने के बाद भगवान ने उनकी प्रियता अप्रियता क्या करने से होती है वो भी हमको अपनी लीलाओं से समझाया है कि ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसा करोगे तो बुरा लगेगा। तो अब वो हमारे लिए उदाहरण बन गया कि उन्होंने उस दिन ऐसा किया तो अच्छा लगा, तो अब हम सब भक्तों को ऐसा करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी के पोस्टर का उदाहरण दिया कि पाद सेवन, प्रभु के चरण सेवा वो करती हैं, तो हम भी करें। अब वैसे फैक्चुअली देखा जाए तो अपने यहाँ ये परिपाटी नहीं है, पर मैंने कई वैष्णवों को, यानी वल्लभकुल में तो मैंने कहीं नहीं देखा है, पर वैष्णवों में मैंने ये देखा है कि वो ठाकुर जी को पोढ़ाते हैं तो अपने यहाँ गोद पर पधरा कर और ठाकुर जी के चरण दबाते हैं या सहलाते हैं। मैंने कभी उनको मना नहीं किया, न मैंने उनकी प्रशंसा की है, पर ये मैंने देखा है। ये संप्रदाय में प्रचलित प्रकार नहीं है, रीत में भी ऐसा कहीं कहा नहीं गया है और न बड़े लोगों ने कभी ऐसा कहीं करते हुए हमने देखा है, पर करते हैं। तो ये अप्रेरित प्रिय करणत्व है। न तो साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी ये लिखते हैं कि पोढ़ाते समय ठाकुर जी के चरण सेवा करनी चाहिए, न कोई भावना के या रीत के सेवा के ग्रंथ में ये बात है, न कहीं कोई कीर्तन में या उपदेश ग्रंथ में ये बात आती है, पर फिर भी सब जो करते हैं तो वो करें, उसमें कोई दोष हो ऐसी बात नहीं है। बस इतनी सावधानी रखनी कि पिचूरपड़ा नखा जैसे नख नहीं होने चाहिए, अपने नाखून अपने अच्छे होने चाहिए, सुगंधित से हाथ थोड़े नरम भी कर लेने चाहिए हाथ, क्योंकि जो हाथ से रसोई करते हैं, शाक संवारते हैं, वो सब हाथ भी सब लोगों के हम देखें तो खुरदुरे हो जाते हैं। तो ऐसे हाथ हों तो हमें ऐसी सेवा का दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। ऐसी कुछ सावधानियां हम अतिरिक्त में बरतनी चाहिए, तो शायद वो प्रियकरण हो। अन्यथा ठाकुर जी भी कहें कि ये और आफत आ गई, तो लक्ष्मी जी को ही रहने देते ये सेवा। तो ये बात देखो कि सत्य की बात है। अब प्रश्न ये था कि जो
भिन्न भिन्न प्रकार की भक्तियां हैं, वो एक समय उनका अनुष्ठान हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब ये प्रकरण तो अब आगे हमको ग्रंथकार समझाएंगे, वहाँ हम उसको देखेंगे कि जब इन भक्ति का हम अमल करें, प्रभु की सेवा में उसका विनियोग करें, विष्णु को अर्पित करें, तो वो एक काल में अनुष्ठेय बन सकती है या नहीं बन सकती है। सब नहीं बन सकती है तो कोई कोई बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो छोटा सा उदाहरण ही हम लें, जैसे हमने दंडवत की। अब दंडवत यदि हम कुछ स्तोत्र पढ़ते हुए दंडवत कर रहे हैं तो हमारा कीर्तन हुआ कि नहीं साथ में? तो वंदन और कीर्तन दोनों साथ हो के नहीं। इसी तरह हम जारी जी भर रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और हम भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठलनाथ के हाथ को भावे कीर्तन करते हुए यदि हम श्रृंगार कर रहे हैं तो कीर्तन भक्ति हो सकती है कि नहीं? ठाकुर जी के दर्शन श्रृंगार करते हुए मधुराष्टक का हमें पाठ करना चाहिए, तो अब वो मधुराष्टक है, उसका कीर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने अर्चन भी किया है, साथ साथ हमने कीर्तन भी किया है। अब मानो कि रसोई की सेवा कर रहे हैं, मुंह बंद रखना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। तो आप स्मरण कर सकते हो कि नहीं? तो आपका जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, ये सब तो परिचर्या कर रही हैं, यानी पाद सेवन में परिचर्या ही कही है यहाँ। और आप बोल नहीं पा रहे हो पर आप स्मरण तो कर ही रहे हो। चलो स्मरण के कारण रसोई में एकाग्रता भंग हो जाती हो तो हम उसी में ध्यान रखना चाहें तो स्मरण न करें तो कुछ हम बजा सकते हैं ना, या कोई कीर्तन गा रहा हो उसको सुन तो रहे ना। तो पाद सेवन और श्रवण दोनों साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब तत्त काल में तत्त भक्ति एक काल में 2, 3, 4 या 5 नहीं हो सकती हो। तो जो उदाहरण हमने देखे उसके अनुसार 2 या 3 एक साथ हो सकती हो। पर हमारा जो पूरा आत्मनिवेदन का पैकेज है, या जो हमारा पूरा एक साधना का क्रम है, उसमें यदि ये सभी प्रकार की भक्तियों का समावेश है तो काल के भेद से भले ही भक्ति एक काल में एक से अधिक हम न कर पाते हो या 2, 3 से अधिक न कर पाते हो, पर एक ही व्यक्ति भगवत सेवा में सभी प्रकार की भक्तियों का अनुष्ठान तो करता ही है और करना ही है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो दास्य कर रहा है वो सत्य नहीं कर सकता है, साक्षी कर रहा है वो आत्मनिवेदन नहीं कर सकता है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो अवतार काल के उदाहरण हैं जिनको लेकर हम अपनी बुद्धि को थोड़ा वर्णित कर रहे हैं। उसमें हमको ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा संभव नहीं है, पर सच बात तो ये है कि सखा के रूप में जिसका उदाहरण दिया जाता है वो सखा अर्जुन भगवान को ये कहता है कि शिष्यस्ते हम शादी मात्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारा चेला हूं, तुम मेरे गुरु होकर और मुझे कहो। अब जिसको भगवान ने सखा कहा, भगवान ने जिसको अपने आप को कहा कि मैं तुम्हारा सखा हूं, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा शांति पृच्छति, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, सखा हूं, ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होते हैं। तो तुम मुझे ऐसा अपना सुहृद जानो। एक और भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन भगवान को कह रहे तू मेरा गुरु है, मैं तुम्हारा चेला हूँ, तो मुझे अभी शिष्य मत मानो, अरे सखा मत मानो, अपना चेला समझकर मुझे बोध करो। और जब चेला बना दिया तो भगवान ने फिर आगे ये कहा कि मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। अभी ये कहाँ से आ गया कि भक्त का भक्तदास हो गया? तो जिसको भगवान ने सखा माना था और उसके ड्राइवर बने, वो ये कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूं। तो पूरा चित्र बदल गया। अब जिसने गुरु चेला संबंध स्थापित किया, अब वो गुरु ये कह रहा है कि मैं गुरु नहीं, मैं तेरा भगवान हूं।
तू मेरा भक्त है, तू मेरा दास है, मैं तेरा स्वामी हूँ। तो सब गुड़ गोबर एक हो गया ना यहाँ। संस्कृत में उठती है गोमयम पायसम, गाय की ही प्रोडक्ट, गौमूत्र, गोबर और दूध, तीनों ही गाय के प्रोडक्ट हैं। इसलिए अगर कहना हो तो गोमय कहा जा सकता है। गाय का जो भी प्रोडक्ट हो उसको गोमय कहा जा सकता है। अब गोमय अपने यहाँ बड़ा पवित्र माना गया है। कभी कोई शुद्धि का प्रसंग हो तो गोमय का सेवन करके और उससे देह शुद्धि की जाती है। उसमें पंचगव्य भी होते हैं। तो दूध होता है, दही होता है, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 पंचगव्य कहे जाते हैं। उनका सेवन करके और शुद्धि की जाती है। छोटे मोटे हर प्रसंग में इन चीजों का प्रयोग होता है। पर अगर कोई ये कहे कि ये क्या पदार्थ है, हमको गोमय कुछ खिलाओ, और गोमय खिलाओ उसका तात्पर्य वो है कि दूध की अच्छी गाढ़ी खीर बनाकर खिलाओ, वो भी कहना चाहता है। और हम गोबर और गौमूत्र का मिश्रण लेकर उनको धोने में भर के दें, अच्छे चांदी के कटोरों में, सोने के चम्मच में ही दे दें, फिर लो करो सेवन। तो गोमय और पायस एक नहीं, ये एक बड़ी दुर्घटना है। उस तरह से हम तो यहाँ उस बात पर लड़ रहे हैं कि दास है वो सख्य नहीं हो सकता है, सखा है वो दास नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो सब गुड़ गोबर एक कर दिया भगवान ने। तो हो सकता है, कहने का मतलब ये है, ये तो आपसी संबंध की बात है। मैंने कई ऐसे पिता पुत्रों के भी संबंध में देखा है कि वो बेटा है, वो अपने बाप के कंधे पर आकर रहो, बॉस केम छो, ऐसे गुजरातियों में मैंने कई जगह पर देखा है। तो अब वो सत्य है, वहां वो सत्य प्रकट हो गया है। और ऐसे प्रकट सत्य का तिरस्कार बाप नहीं करता है, उसको अच्छा लगता है क्या, चलो। अन्यथा तो ये अनादर माना जाए कि बाप की पीठ के ऊपर ऐसे धब्बो, गुजराती में कहते हैं, ऐसे लगाना, वो उसका अनादर है। इस तरह से भूमि का एक ही संबंध मानो किसी से स्थापित किया है, तो उसमें ऐसा उतार चढ़ाव स्वीकार्य बन जाता है। अब रही बात ये कि हमारे यहाँ उसका अनुष्ठान किस प्रकार से है, वो अब आगे ग्रंथकार हमको समझाएंगे। तो सिद्धांततः हमने ये समझा पार्थ के प्रश्न के उत्तर में कि जो सखा होता है वो दास नहीं हो सकता है, दास होता है वो सखा नहीं हो सकता है। ये बात वैसे सच है, जिसको एकांतिक सख्य भक्ति का दान किया है भगवान ने, या जिसका एकांतिक सखा के रूप में ही अपना संकल्प है, वो दास कर्म नहीं कर सकता है, उसको भगवान दास्य प्रदान करना भी नहीं चाहेंगे। इसी प्रकार जिसका एकांतिक दास्य है, उसको भगवान अपना सख्य भाव भी प्रदान नहीं करेंगे, वो बात भी सही है। जैसे अर्जुन को माथे पर भी बैठा सकते हैं भगवान, उसको जमीन पे भी बैठा सकते हैं, पर हनुमान कभी भी श्री राम के सिंहासन पर जाकर बैठ नहीं सकते, असंभव बात है, वो कल्पनातीत बात है। जबकि रामायण के हिसाब से सुग्रीव, हनुमान, इनके साथ तो रक्षाबंधन हुआ था राम का, फ्रेंडशिप बेल्ट सबसे पहले तब बंधा था, वहां दास्य की बात ही नहीं थी। वो फ्रेंडशिप बेल्ट बांध के अग्नि की साक्षी में परिक्रमा लेकर और उन्होंने अपने सख्य की प्रतिज्ञा ली थी। पर फिर भी भगवान ने मतलब हनुमान ने भगवान का दासत्व ही हमेशा सोचा था और स्वीकारा था। तो इस दृष्टि से हम देखें तो जहाँ एकांतिकता है वहाँ ऐसा संभव नहीं है। पर जो चतुश्लोकी ग्रंथ का संदर्भ देकर सब लोगों ने कहा कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, तो हमारे यहाँ वो सर्वभाव है, और सर्वभाव जो है उसका स्वरूप निरुपाधिक भाव है।
प्रभु के प्रति निरुपाधिक जो स्नेह है वो यहाँ सर्वभाव शब्द से कहा गया है। अब निरुपाधिक भाव ऐसा बेरंग है कि उसके बगल में जो भी रंग आएगा उसकी छाया वो स्वीकार कर सकता है। तो जो प्रेम है वो यशोदा जी में गया तो मातृभाव लेगा, सखाओं में गया तो सख्य भाव ग्रहण करेगा, गोपी जनों में वही निरुपाधिक भाव गया तो कांत भाव को प्रकट करेगा, सांदीपनी में गया तो गुरु शिष्य संबंध को प्रकट करेगा। ये निरुपाधिक प्रेम है, उसको यहाँ सर्वभाव कहा गया है। इसलिए जब निरुपाधिक भाव को लेकर हम प्रभु के सामने जाते हैं तब फिर सख्य दास्य आत्मनिवेदन में कोई विरोध रहता नहीं, वो उन सब भावों को पचा सकने की सामर्थ्य रखता है। अगर निरुपाधिक भाव नहीं है, सोपाधिक है कि आप मेरे पति ही हो, ऐसा भाव स्थापित कर लिया, तब फिर भगवान पति के अलावा और कोई भूमिका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तब फिर काम के गए आप। अगर भगवान ने पतित्व अपना छोड़ दिया, जैसे जो अंतर्ग्रहता ये अपनी कुमारिकाएं हैं, उन्होंने जब भगवान को हेमंते प्रथमे मासी भगवान को पति के रूप में चाहने के लिए कात्यायनी व्रत किया, तो भगवान ने उनका स्वीकार नहीं किया उस भाव का, और जिन्होंने कोई व्रत नहीं किए उनका हरण कर करके और भगवान ने उनका पतित्व स्वीकार किया। तो अब आप किसी एक भाव में रूढ़ हो जा रहे हो तब आप घाटे का सौदा कर रहे हो, पर यदि आप निरुपाधिक सर्वभाव में स्थिर हो तो भगवान की सभी प्रकार की जो लीला है वो उस लीला का आप आनंद ले सकते हो और उसमें सहभागी बन सकते हो। तो ये बात हमें यहाँ समझनी चाहिए कि ग्रंथकार जो निरूपण कर रहे हैं उसमें यहाँ कोई विरोध नहीं है उन भावों के अंदर या उन भूमिकाओं में। जो सखा है वो दास भी हो सकता है, दास है वो कभी सखा भी हो सकता है। और इन्होंने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा की दृष्टि से यदि इन बातों को विचारें तो उसमें कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि अनन्य गामित्वम दास्यम, एक स्वामी मारे है, एक वर्यो गोपी जन वल्लभ नहीं मारी स्वामी बीजो है। तो ये तो अनन्य गामित्व हो गया। उस जिसका हमने स्वामित्व स्वीकार किया है उसका अप्रेरित प्रिय भी हम कर ही सकते हैं ना, तो सख्य हो गया कि नहीं हो गया। तो वो दास्य में सख्य बड़ी आनंद से, जैसे दूध में मिश्री मिल जाती है उस तरह से ये सख्य क्वालिफाइड बाय दास्य, ऐसा उसका स्वरूप बन के आया है। उसमें भी आपने अपने आत्मा और आत्मीय सकल का निवेदन समर्पण यदि कर दिया है तो ये उसमें और एक ज्यादा उत्कर्ष बढ़ गया, तो आत्मनिवेदन भी उसमें बड़े आनंद से जाएगा। यानी दूध, शक्कर और उसमें केसर, इलायची, बादाम, पिस्ता भी आ गए ऐसे। तो ऐसे सर्वस्व निवेदन पूर्वक दास्य में सख्य, ऐसा एक अद्भुत सामग्री तैयार हो जाती है। ऐसा इसका तात्पर्य हम समझना है। ठीक है, तो आप देखें ऐसा कह सकते हैं कि मर्यादा में पॉसिबल नहीं है, पर जैसे आपने समझाया पुष्टि में सब पॉसिबल है, मर्यादा में अर्जुन मर्यादा ही तो है ना। अच्छा, मर्यादा में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। बलि राजा क्या था? बलि से भगवान ने दान में सब कुछ ले लिया, कुछ बचा नहीं। तो बलि ने कहा कि ये तो मैं ही आपकी शरण में हूँ। भगवान उसका माथा झुका दिया। अब जिसके माथे पर पांव रख रहे हो उसके द्वारपाल बनकर तुम खड़े हो, ये कौन सा संबंध है? ठीक है, तो ये ऐसा सर्वत्र है। एक उदाहरण देता हूँ, अपने यहाँ घर में जो काम करने वाले होते हैं उनको हम अलग भोजन करने के लिए बैठाते हैं। हम बैठते हैं, कमरे में आए तो उनको जमीन पर बैठाते हैं या उनकी अलग कुर्सी दे देते हैं। ऐसा अपने यहाँ का रिवाज है, दोनों ओर स्वीकार्य है। पर अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें जो काम करने आते हैं वो इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं।
आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, आपके साथ आपका नौकर भी खाना खाएगा, और अगर जरा सा भी आपने किया तो एट्रोसिटी में आपको जेल में डलवा देंगे। तो ऐसा भी है। मैंने एक बार भूकंप के पश्चात मांडवी में हमारे घर का काम शुरू हुआ, तो मोरबी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने के लिए हम गए। तो हम जिनके साथ गए थे, उनका ड्राइवर और भी सब साथ में थे। अब उनको खाने का इतना शौक कि क्षण क्षण में उस पूरे रास्ते में जितनी जगह मिले वहाँ वो खाते हैं, खवाते हैं। होटल में तो खाए ही सही, रास्ते में कोई बेचने वाले आते, उनसे भी जो कुछ भी मिले वो सब पूरे 3-3.5 घंटे तक वो खाते ही रहे। फिर ये प्रज्ञेश बैठा है, उसके घर भी कुछ खाकर आए। फिर उससे पूछा कि भी मोरबी में कौन सी जगह अच्छी है जहाँ स्वादिष्ट खाना मिलता है, वहाँ जाके और खाया। और हम जितनी टाइल की फैक्ट्री में देखने के लिए गए, वहाँ भी उन लोगों ने जितना खवाया सब जगह खाया, और लौटते समय वापस रात को खाना और खाया, और घर 2 बजे हम पहुंचे तो वहां भी खाया। पर सबसे खूबसूरती ये बात की थी कि उनका जो ड्राइवर था उसको अपने साथ में बैठा कर खवाते। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ड्राइवर है मेरा, तू नीचे बैठ या अलग बैठ, या हाथ में लेके खा ले। तो आप देखो कि दास कर्म कर रहा है वो, पर भोजनादि में अपने साथ बैठ रहा है। अब भगवान और अर्जुन के संवाद में हम देखें तो अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ऐसे टाँग मारे टाकिया दूजे थे। अगर भले मुझे क्या पता था कि आप ये थे, मैंने क्या सोचा था और क्या निकले। तो आप भाई पहले मेरे से जो कुछ भी विहार शय्यासन भोजनेशु कुछ गड़बड़ी हो गई हो, कहीं सोते समय टांग वांग लग गई हो, भोजन के समय कुछ आपकी थाली में से मैंने ले लिया हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो तो भाई साहब माफ करना। ऐसे करके वो क्षमा याचना करते हैं अर्जुन, और ये उनको साथ में बैठा कर खवा रहे हैं। तो जो दास्य है उसके साथ भी समान व्यवहार करके उसको सखा को जो अधिकार प्राप्त है वो दिया जा सकता है ना। तो लोक में भी ये अब स्वीकार्य है। मैंने देखा है इंटरनेशनल सब ये जो न्यूज चैनल्स आती है उसमें कि राष्ट्रपति है वो अपने कर्मचारियों के साथ लाइन में लेकर मेज में से खाना ले रहा है, और उसका नंबर आता है तब वो अपनी थाली से खाना लेकर और खा रहा है। तो कहाँ रहा ये? एक तो राष्ट्राध्यक्ष होना बहुत बड़ा ऊंचा ओहदा है, और सफाई कामदार, चौकीदार, अपने क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट, इन सबके साथ में लाइन में लगकर भोजन लेना, तो एक तरह की समानता है ना वहाँ भी। तो सभी जगह यथा योग्य ये सब भाव स्वीकार्य हो जाते हैं। लंबे संबंध, स्थायी संबंध होते हैं, उसमें ये ज़्यादा होता है। यदा कदा हम मिलते हैं तो उसकी बात अलग है। ठीक है जी हाँ। देखिए, जिज्ञासावश प्रश्न है कि लालू भट्ट जी ये जो जयपुर के राजा के सामने संप्रदाय को रिप्रेजेंट में ये सब भक्ति के लक्षण दे रहे हैं, तो बाकी के भक्ति के लक्षण तो हम समझ सकते हैं कि वंदन है या दास्य है, लेकिन जो सख्य में है अप्रेरित प्रिय कारण, तो मतलब जितना हम पूरा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो दिया है अभी वो महाप्रभु जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो शक्यता है कि कहीं कहीं महाप्रभु जी के वचनों में ये शेर उनको मिलता होगा। अगर इनके ही वचन ये पहले है, ये डेफिनेशन सत्य की अगर कोई पूर्वाचार्य या मूलाचार्य में नहीं है अप्रेरित प्रिय कारण, तो उनके ही अगर शब्द पहले माने, जितना मुझे अभी नॉलेज है, तो दो शक्यता हो सकती है कि उन्होंने पुष्टि मार्ग के व्यवहार देखे हो सेवा आदि से, वहाँ से एक आया हो, या कहीं पे महाप्रभु जी गोसाई जी के वचनों से ऐसा कुछ प्राप्त हो। तो ये जिज्ञासा बात था कि लालू भट्ट जी ने डिसीजन लिया है, व्याख्या की, उसमें प्रमाण दे ही दिया है ना, श्रुति रूपा गोपीजनों के ये वचन ही तो प्रमाण है, और उद्धव का चरित्र है, उस पर सुबोधिनी भी है आचार्य चरणों की, तो और कहीं जाने की उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है।
सदाचार तो है ही, पर सदाचार आया कहाँ से? सेवा प्रमाण मूलक है, प्रमाण भागवत है, तो भागवत का चरित्र, उसके ऊपर आचार्य चरणों का विवरण, वहीं से तो ये सब बात आई ना। अन्यथा हमको ये प्रेरणा कहाँ से मिले कि हमें मनोरथ भी कर सकते हैं। तो व्याख्या ही पहले लालू भट्ट जी ने इस तरह से, मतलब लालू भट्ट जी के वचन में ही अप्रेरित प्रिय करना, तो वो लालू भट्ट जी का ही लक्षण उन्होंने दिया है ये, पर वो लक्षण निकला कहाँ से है तो वो तो ये उसके सोर्सेस हैं। बाकी निबंध में आचार्य चरण ने यज्ञदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियम आत्मनः येन स्यात् निवृत्तिश्चित्ते, तो यच्चात्मने प्रियः, ये उसी के तो मूल है। आत्मनः भगवंतम प्रियम आम्र दुग्धादिकम, ऐसा वहाँ महाप्रभु करते हैं। तो ये प्रियकरण दास को कैसे सूझेगा? जहाँ तक सत्य भक्ति उसके अंदर या सत्य भाव उसमें नहीं पैदा हुआ है, तो अपने आप ऐसा सूझ नहीं सकता है। देखिए, जो अभी आधुनिक भक्त है, मतलब अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरह ले जाए, तो जैसे आपने श्रुति, स्मृति, सदाचार और स्वप्रिय, तो अप्रेरित प्रिय करने में थोड़ा कुछ हम ऐसा समझे कि स्वप्रिय में आ रहा है, कि हमको जो अच्छा लगता है वो प्रभु को कर रहे हैं। अगर सदाचार आ गए तो अप्रेरित तो निकल जाएगा। अप्रेरित प्रिय करना तुम सक्षम, ऐसा कह रहे हैं, तुम संप्रदाय की साधना से चले तो ठीक है कि भाई शास्त्र में कहीं पे नहीं किया, लेकिन पूर्वाचार्यों ने ये कुछ किए हैं, जो प्रणालिका बताई वो एक जात की अप्रेरित ही है। लेकिन जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि कोई भक्त ठाकुर जी के चरण सेवा करके उड़ा रहा है, तो अप्रेरित प्रिय करना तो माया, तो उसको भी जैसे कहीं पे तो एक लगाम वो लगानी पड़ेगी ना, मतलब अपनी लाइफस्टाइल में भी, कि वो प्रेरित प्रिय करना तो इतना न बढ़ जाए, क्योंकि अभी के आधुनिक भक्तों को तो वो आइडिया नहीं है कि प्रिय करना तुम क्या है, कि प्रभु को क्या प्रिय लग रहा है। नहीं तो मूला हम इसीलिए प्रणाली का फॉलो कर रहे हैं कि बड़ों ने जो किया है तो ठाकुर जी को प्रिय लगा होगा। तो जैसे उसकी भी एक थीन लाइन कैसे सोच सकते हैं कि अप्रेरित अप्रिय न बन जाए। जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल दिए कि हाथ में खुरचलाहट है तो प्रभु कैसे चरणार्विंद नहीं डाले, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल तो है, लेकिन जहाँ पे ऐसे क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ये हम लोग व्यवहार से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे भी उसमें भी कुछ सोच सकते हैं। परंपरा में तो ये सब है ही ना, जो भी परंपरागत सेवा प्रकार का अनुसरण करते हैं और उनके संग में जो रहते हैं उनको ये सब सूझबूझ आती है। पर जो केवल किताब देखकर और करते हैं और जिनको साक्षात अपने गुरु परिवार का या भगवतीय सेवा परायण लोगों का संग नहीं है, वो तो कुछ भी उत्पाद कर सकते हैं। हमारे एक उदाहरण देता हूँ कि एक वैष्णव हमारे यहाँ से, उनके यहाँ लालन पधारे थे और उनकी सेवा करते थे। किसी कारणवश उनको अपने देश जाना पड़ा। अब वो न तो हमारे यहाँ ठाकुर जी पधराने आ सके ऐसी स्थिति थी और न गांव में कोई ऐसा सेवा करने वाला परिवार था, पर एक कंठीधारी वैष्णव था तो उनको वही एक विकल्प मिला, तो उनके यहाँ वो ठाकुर जी पधरा के गए। अब ठाकुर जी को चिबुक धराते थे वो। अब चिबुक तो था, वो कुछ चीजें ऐसी ऐसी है कि रोज जिनको बड़ी करनी पड़े और ऐसी हो तो खो जाने की संभावना रहती है। तो अब एक तो दूसरे के ठाकुर जी और कीमती वस्तुएं सेवा में हो, खो जाए तो फिर दूसरा विवाद खड़ा हो जाए। तो उन्होंने ये लिया कि फेविफिक्स लेके और ठाकुर जी को धरा दिया। वो ये रोज धराओ बड़ो करो तो ये खोने की समस्या ना। अब फिर जब वो आए वापस और उन्होंने स्नान कराने के लिए वड़ा किया तो चिबुक खिसका ही नहीं। उसने कहा कि ये ठाकुर जी ने किस तरह से धर लिया है कि उसको वड़ा ही नहीं करने देते हैं। पीछे उन्होंने जिनके यहाँ पधराए थे उनको पूछा तो कहता वो मैं क्या करूं, तो ये खो जाए तो फिर मुश्किल हो जाए, इसलिए फिर मैंने फेविफिक्स लगा के वो धरा दिया। तो अब ऐसा होता है।
हम लोग भी कुछ ऐसा करते होंगे, अब हमको पता नहीं है, कोई दूसरा बताए तो ही पता चले। पर अब मानो कि जो कोई व्यक्ति जैसे मार्बल का कोई काम कर रहा है, उस आदमी क्या ठाकुर जी पधारे हैं, तो कैसे क्या चीज फिक्स करनी, उसको जो अभ्यास है वो ही चीज का तो उपयोग करेगा ना, उसको दूसरी सूझ ही नहीं है, परंपरा का ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी उत्पाद कर सकता है। ऐसे बहुत उपद्रव से अपने यहाँ का इतिहास भरा पड़ा है। तो वो जैसे दातुन वाली कथा है, या ठाकुर जी की शैया फूल से सजाने की कथा है, ये सब बातें ऐसी हैं कि जो इन्हीं सब बातों को समझाती हैं। वस्त्र श्रृंगार इत्यादि में भी कभी कभी ऐसे उपद्रव हुए और ठाकुर जी ने परिश्रम हुआ ऐसे जताया हो, तो ये सब परंपरा से और विधि पूर्वक सेवा प्रणाली का जो जिनके यहाँ हो, उनका संग करने से ही ये सब चीजें कई सालों में समझ में आती है। निरंतर संग बना रहे दिन रात का, तो ही ये सब पता चलती है। ताकि हमको ऐसा लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, 80 साल हो गए, 100 साल हो गए, तो ऐसा ही कुछ न कुछ। तो एक उदाहरण देता हूँ, कई बार वैष्णवों को चरण स्पर्श करते हैं गुरु के, तो मैं देखता हूँ वो ऐसे चरण स्पर्श करते हैं, हमारे चरण स्पर्श उल्टे हाथों से ऐसे, ये ऊपर रहते हैं, नाखून नीचे रहते हैं, और उससे ऐसा है ये चरण स्पर्श। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि चरण स्पर्श करने की कौन सी विधि है। तो ठाकुर जी को भी उसी तरह से चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे यूं, ऐसे नहीं। अब वो तो 25-40 साल से वो सेवा कर रहे हैं, पर ये कौन सी विधा है, नवधा में से दशधा है, एकादशधा, ये कौन सी चरण स्पर्श की विधि है, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। अपन सबको क्या कहें, तो ऐसा हो जाता है। पर इसका उपाय तो यही है कि निरंतर हम जिनको भी हम प्रामाण्य का बोध जिनके अंदर हो, उनसे हम ग्रहण करें। सबकी बात तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। ओ जैसे कल हमने देखा था कि श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति में जो प्रभु का नाम गुण लीला जो करते हैं, वही श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति है। तो जो महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि हमें अपने पूरे जीवन में सेवा और अनुसर में कथा करनी चाहिए, तो वो कथा है वो ये श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति ही है। मतलब ये जो कथा में हम सुबोधिनी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम यही कर सकते हैं, या ये जो नाम लीला गुण आए वही कथा है, या और कोई दूसरा भी है? ये तो विषय आ ही रहा है, अभी उसकी चर्चा नहीं करें। अभी विषय जो चला है वो ये केवल नवदह जो प्रकार हैं उनके लक्षणों का ही विचार हुआ है। उसका व्यवहार में कैसे हम अनुसरण करना है या किया जाता है, वो अब आएगा विषय। तो लक्षणों को समझने में कोई असुविधा हो तो उसकी चर्चा करें। तो जैसे उसमें वो श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति में यही ये भगवान की जो नाम लीला गुण चरित्र वही आते हैं, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े ग्रंथ वगैरह नहीं आते हैं। नहीं वो नहीं आते, वो तो भक्ति के सिद्धांत को समझाना है, भक्ति थोड़ी है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है और कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ना, वो इंजीनियरिंग करना थोड़ी कहा जाता है। आप जब जाओगे पढ़ाई नौकरी धंधा करोगे, ऑन साइट आप कुछ करोगे, तो वो इंजीनियरिंग है। डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं है। क्या आप रसोई सीखने जाओ, वो कोई गृह कार्य नहीं है। आप जब गृहस्थ होगे और रसोई में जाओगे तब वो आपका गृह कार्य होगा।
ऐसे ये सब सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना समझना ये भक्ति नहीं है, भक्ति के सिद्धांत का बोध प्राप्त करना है। दीदी, कल एक प्रश्न पर हमें विचार करना था, कल एक प्रश्न किया था, तो उस पर ऐसा आपसे आगे किसी की इस पर विचार करके हम सोचेंगे दीजिए। यानी जैसे कि अभी ये स्मरण में जो आया था कि रूप लीला परिकर आदि जो थे, और उसमें जो शास्त्र वचन लालू भट्ट जी ने दिए थे, तो उसमें परिकर आदि का तो कहीं वहाँ पे नहीं आ रहा है लिखा हुआ। तो इसको फिर इन्होंने जो ये ग्रंथ में जो किया लिखा है, यानी कई उपलक्षण विधि से या कई इत्यादि आदि वचन से, तो क्या उनका मत यानी हेतु रहा होगा इस प्रकार से यानी कहना। तो मुझे इस पर थोड़ा विचार किया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस विषय को अभी ये आगे का जो प्रकरण है ना, उसमें अभी हम और लिस्ट बढ़ा रहे हैं कि नहीं लालू भट्ट जी वो देख लें, उसके बाद हम, अब अगर उन्होंने ही कर रखा हो तो पीछे हम समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम कुछ सोच सकें, तो करेंगे उसको भी। तो कल हमने सख्य भक्ति में अंत में ये देखा कि लालू भट्ट जी ने श्रीधर स्वामी को भी लपेट में लिया है अपने समर्थन में, और उन्होंने ये कहा है कि सख्य जो है वो विश्वास आदि को भी सख्य कहा जाता है। तो उसमें आदि पद से अप्रेरित प्रियकरण भी सख्य के लक्षण में लिया जा सकता है। इसमें श्रीधर स्वामी भी मेरे समर्थन में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह से उन्होंने, यद्यपि हमारे यहाँ श्रीधर स्वामी का उस अर्थ में प्रामाण्य नहीं है, परंतु कभी वादी मुख से हम कभी बात करते हो तब सामने हमारे चर्चा में आने वाला व्यक्ति है, वो जिसे प्रमाण मानता हो, उसके वचन हमें अपने समर्थन में प्राप्त होते हो, तो उसे निरुत्तर करने के लिए ये भी एक युक्ति के रूप में या प्रमाण के रूप में वचन दिए जाते हैं। तो दो आस पड़ोस में कोई विवाद हो गया और पड़ोसी का कोई एक सदस्य हमारे साथ विवाद कर रहा हो, इतने में हम कहें कि भी देखो तुम्हारे सास भी यही कह रही है जो मैं कह रहा हूँ, तो वो बेचारी खुद की सास तो देखो हाँ एवं है, तो बात पूरी हो गई, फिर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अब वो उनकी रामायण चलने दो आ रही। तो उस तरह से श्रीधर स्वामी भी हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं, तो अब समझ जाओ, तो ज्यादा चर्चा आगे मत बढ़ाओ, ये तात्पर्य है इनका। अब इसे लक्षण समझाने के बाद उसे अब घटित किया जा रहा है, लागू कर रहे हैं कि संप्रदाय में ये सख्य भक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो तदिह भगवन मूर्तिम सेवमानेन क्रियमाणाः तत्तद्देश कालानुकूलोपचाराः स्थूल कंचुक चंदन लेपन प्रवृत्तयो। ये जो सख्य यानी अप्रेरित प्रिय करण रूप जो सख्य है, वो इह यानी हमारे संप्रदाय में भगवान मूर्ति जिनकी सेवा की जाती है, उनको देश और काल के अनुसार उपचार के रूप में ये सख्य भक्ति की जाती है। तो वो कैसे, जैसे ठंड हुई तो स्थूल कंचुक यानी रुई के वस्त्र धराए जाते हैं, अभी जैसे गर्मी चल रही है तो चंदन का लेप किया जाता है। इस तरह से ये सख्य भक्ति हमारे यहाँ उसका अनुष्ठान किया जाता है। इसमें प्रमाण मालया दैत गंध तुलस्या इत्यादि वाक्य सिद्धाः तुलस्यादयश्च भगवतः प्रिय रूपा बोध्याः। तो भागवत में ये कहा है कि सुगंधित फूल और तुलसी के प्रिय गंध वाली माला श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। तो यहाँ ये
भगवान को प्रिय, दयित पद का मतलब होता है प्रिय। तो भगवान को जो प्रिय पदार्थ है उनका भगवान को समर्पण किया जाता है। तो तुलसी आदि भगवान की प्रिय हैं। तो प्रभु को क्या प्रिय है उसे जानकर प्रभु को समर्पित करना वो प्रिय पदार्थों को। इस रूप में ये सख्य भक्ति हमारे यहाँ अनुष्ठित होती है। इसमें ये जो पूर्ण विराम आ गया है वो गलत है, वो निकाल देना। इत्यादि वाक्य से था, उसके बाद पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, ये वाक्य चालू ही है। अब इसमें अप्रेरितता क्या है और प्रियता क्या है। मूल जो सत्य का लक्षण बताया उसमें अप्रेरित प्रियकरणत्वम ऐसा कहा। तो अप्रेरित का मतलब क्या और प्रियकरण का मतलब क्या, उसे हम क्रमिक रूप से समझाते हैं। अप्रेरितत्वन्तु विधायक वचन विषयत्वा भावः, बिना प्रेरणा के करना। बिना प्रेरणा मतलब क्या कि तुम ऐसा करो, ऐसा कोई विधायक वचन यानी ऐसी कोई आज्ञा आपको प्राप्त नहीं है और बिना आज्ञा के आप कुछ कर रहे हो, तो ये अप्रेरित करण हुआ। अब ऐसा अप्रेरित भी प्रिय करण, तो प्रिय का क्या मतलब है वो भी बताएंगे। तो आगे कहते हैं कि तथा सति मंत्रादिभिरेव उपचाराः विधेयाः इति आग्रहो न रक्षणीयः। तो इस अप्रेरित करण का तात्पर्य ये है कि सामान्यतया जितनी भी देव संबंधी क्रियाएं होती हैं वो समंत्रक होती हैं। आप जो भी यज्ञ कर्म होम पूजा इत्यादि में आप देखते होंगे कि कुछ भी करो तो करने पर यदि मंत्रोच्चार नहीं हो रहा है तो यजमान रुक जाता है, वो पुरोहित की ओर देखता है कि हाँ बोलो मंत्र तो बोलो। अब वो मंत्र बोलेगा तब फिर आप उसके संबद्ध जो क्रिया है वो आप करोगे। तो अमंत्रक पूजा हो ही नहीं सकती है। आपकी क्रिया का स्वीकार तभी होता है जब आप उसे मंत्र सहित करते हैं। साथ साथ हर मंत्र के पहले या पश्चात क्रिया का विधान किया जाता है। अयम दीपः, अयम गंधः, अयम पुष्पाणि, इमानि पुष्पाणि, ऐसे। तो जो भी पदार्थ का विनियोग पूजन में होता है उनको उद्देश्य किया जाता है, उनका विधान किया जाता है, उनके समर्पण के समय मंत्र बोला जाता है। उसके साथ साथ ये सब क्रियाएं चलती हैं। और ये और सावधानी रखी जाती है कि यदि आपने क्रिया पहले कर दी, विधान और मंत्र उस समय नहीं बोला गया, तो वो प्रायश्चित उसका करना पड़ता है कि ये गलत गड़बड़ी होगी, दोषदापण देगी ऐसे कि अभी तक तो जो उसका पुरोहित ने उच्चार ही नहीं किया, ऐसे कैसे कर दिया। आहुतियां होती हैं, उसमें भी आहुति के मंत्र बोले जाते हैं, उसके बाद स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार ऐसा सब बोला जाता है। तो जिस समय आपको स्वा ऐसा बोला जाए उस समय आपको उस आहुति को होमने के लिए हाथ में तैयार रखना है या चम्मच में रखना है। तो हाँ जब बोला जाए तब उसमें डालना है। अब आप बहुत हरख हरख में मंत्र पूरा होते ही स्वाहा बोल दे रहे हो और स्वाहा एक साथ बोलकर आप डाल रहे हो तो आहुति विफल हुई। स्वा पर होम नहीं होता है, हा पर होम होता है। तो आप देखो कि ये जो क्रिया है उसकी सूक्ष्मता ऐसी है। इसलिए जो भी विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वो बिना विधि के, बिना मंत्र के कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ तो ये सख्य कहा जा रहा है कि बिना कहे करोगे तो सख्य होगा।
तो अब जो ऐसे विधि से बंधा हुआ है, वो विधि से बंधा हुआ में ये साहस आएगा कहां से? उसके तो हाथ अटक जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब शुरू में जितने भी हम सभी जो मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, उनकी प्रारंभिक अवस्था ऐसे विधि अधीन कर्म जड़ जैसी ही होती है, और उनके प्रश्न भी ऐसे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यमुनाष्टक बोलते हुए झारी भरनी, ऐसा एक परंपरा है। अब उनको प्रश्न कैसे होते हैं कि झारी तो इतनी सी और यमुनाष्टक इतना बड़ा है, तो झारी पहले भर जाएगी और यमुनाष्टक तो बाकी रह जाएगा, तो अब क्या करना, दूसरी भरनी, या टुकड़े टुकड़े में नमामि यमुना में एक श्लोक पे 2-4 बूंद डाल दी, फिर दूसरे श्लोक पे 2-4 बूंद और डाल दी, और अंतिम पे जब हम रखें स्टोर करके तब तक हम यमुनाष्टक बोलते रहें, और जैसे ही पूरा हुआ स्वाभाविक जो ऋषि आए, तो कैसे करना? ऐसी सब ये भोली भोली समस्याएं हैं, पर जिनको परंपरा का या उसके पीछे का तात्पर्य भावना का बोध नहीं है, उनको ये बहुत बड़ा प्रश्न लगता है कि कैसे किया जाए। पर शास्त्र में ऐसी जटिलता कर्म में है। जैसे कई कर्म ऐसे होते हैं जिसमें वसुधारा की जाती है, कई कर्म ऐसे हैं जिसमें वर्ण कलश है, उसका स्थापन करने के बाद वहां उसका उपयोग किया जाता है धारा से। उसमें ये बात कही गई है कि आपकी धारा रुकनी नहीं चाहिए, अगर रुक गई तो विफल कर्म। इसी तरह वसुधारा है, तो वसुधारा अखंड एक धारा का जो शोर है वो अग्नि में, और दूसरा धारा आपकी वहां से जो घी आके आप डालते हो वो उसका संबंध अविच्छिन्न रहना चाहिए। अब तपेली में अगर घी जम गया, पहले से पिघाला नहीं, तो वसुधारा अटक जाएगी। यदि जोर से डाल दिया और सबका सब चला गया और यहाँ धारा अटक गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ कर्म ही इस प्रकार के हैं कि जिसमें इन चीजों का बड़ा भारी महत्व है। अब ऐसे में यमुनाष्टक बोलकर झारी भरनी, उसमें ये बड़ा जटिल प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब तक समाप्त न हो तब तक भरते रहना, ऐसा उसका तात्पर्य है। पहले बोल के बाद में भर देना तो भी चल सकता है कि नहीं, या भरा जाए પછી बाकी का यमुनाष्टक बाद में पूरा करें तो चल सकता है कि नहीं। ऐसी सब बातें समस्या के रूप में आ जाती हैं। तो यहाँ पर श्री लालू भट्ट जी इसको समझाते हैं कि तथा सती अप्रेरितत्वंतु विधायक वचन विषयत्वा भावः। आप अप्रेरित प्रभु को प्रिय कुछ कर रहे हो या करना चाहते हो, तो अप्रेरित होने का मतलब ये है कि ऐसा करने के लिए किसी की प्रेरणा हुई हो और उसके बाद आपने वो किया हो, ऐसा नहीं। अभी ताजा ही दृष्टांत है, बेट शंकोद्धार में जो सेवा प्रणाली चलती है उसमें हमको बार बार पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं कि क्या किया जाए, क्या करें, क्या न करें। अब अधिक मास चल रहा है, तो महीने दिन भर पहले उन्होंने अधिक मास की जो 30 दिन है उसमें कौन से दिन क्या मनोरथ ठाकुर जी के वहाँ किए जाएंगे उसकी सूची भेजी और कहा कि आप इसमें कोई परिवर्तन हो या कुछ हो तो इसकी आज्ञा दें कि इस प्रकार से द्वारकाधीश जी के सेवा में ये सब होता रहेगा। अब उन्होंने जैसे फॉर्मेट सालों का बना हुआ है कि वर्ष भर के जो भी उत्सव आते हैं वो जिस तिथि को आते हैं वो तिथि में अधिक मास में उसको मनोरथ मना लो, क्योंकि वो ऐसा सेट फॉर्मेट है कि कुछ सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो फिर हमें ये तकलीफ हो जाएगी कौन सा मनोरथ नया नया लाए कहाँ से 30-30 मनोरथ। तो प्रतिपदा आई तो अन्नकूट मना लिया, चतुर्दशी आई तो दीपावली मना दी, त्रयोदशी आई तो धनत त्रयोदशी मना दी, द्वादशी आई तो गोवत्स द्वादशी मना ली,
एकादशी आई तो दान एकादशी, पूर्णिमा आई तो शरद पूनम का कर लिया, तृतीया आई तो अक्षय तृतीया मना ली, तृतीया आई तो रथ का कर लिया, ऐसे। अष्टमी तो गोपाष्टमी कर ली। अब उसमें कुछ उत्सव आए तो सप्तमी आई तो श्रीनाथ जी का पाठोत्सव, स्वयं द्वारकाधीश जी का भी वही दिन पाठोत्सव है बेटशंकर में, तो सप्तमी के दिन वो पाठोत्सव मना लिया। नवमी आई श्री गोसाई जी का जयंती, एकादशी वापिस दूसरी वाली आई तो महाप्रभु जी की जयंती, और चतुर्दशी तो नृसिंह चतुर्दशी, और ये सब उत्सव उन्होंने पूरे सेट कर दिए जो पूरा क्रम चल रहा था। अब देखो, मनोरथ की सेवा है वो अपने यहाँ सख्य भक्ति कही जाती है, अप्रेरित प्रिय करणम। मैंने पहले उनसे पूछा कि ये सब मनोरथ किसके मन में जागे हैं, पहले ये तो बताओ। वहां तो ऑफिस है, ऑफिस ये पत्राचार निभाती है कि जब जब भी ऐसे अवसर आए तो महाराज जी को आज्ञा के लिए ये पत्र भेज देना। अब वो जो वहाँ कर्मचारी है वो तो बदलते रहते हैं, वो एज पर इंस्ट्रक्शन या स्केड्यूल जो बना रखा है उसके अनुसार पत्र भेज देते हैं। और जब मैंने ये पूछा कि ये किसके मनोरथ हैं कि इस दिन ये होगा उस दिन वो होगा, तो सब बड़ी कॉन्फ्रेंस उनकी हुई कि किसका मनोरथ है, किसी को पता नहीं है, ये तो किसी का मनोरथ है ही नहीं, ये तो एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है और जब अधिक मास आने वाला हो तो महीने दिन पहले मांडवी भेज देने का पत्र, बस यही एक मनोरथ है। मैंने कि जब किसी का मनोरथ ही नहीं है तो सारे करते क्यों, नित्य सेवा ही करो ना। आपका मनोरथ है और आप करना चाहो तब तो कुछ आज्ञा का विषय बनता है, आपका मनोरथ ही नहीं है। अब मानो कि मनोरथ नहीं है, पर बगल में जो द्वारका है वहां इतने इतने मनोरथ होने वाले हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नाक कट गई कि बेट द्वारका में कुछ हुआ ही नहीं। तो हमको लोक लाज बचाने के लिए जो सब जगह होता है वो हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, वरना बुरा लगेगा। गांव के लोग भी हल्ला मचाएंगे, खास करके वहां का जो पुरोहित वर्ग जो हमेशा मंदिर मैनेजमेंट के विरुद्ध रहता है, वो ये बात को छापाओं में चढ़ाएगा, अखबारों में, ये मैनेजमेंट भ्रष्ट हो गया है, खुद का तो वैभव बढ़ाते हैं, ठाकुर जी का कुछ करते नहीं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो जिन जिन के मनोरथ जो जो हों वो पहले आप, ये पुष्टि मार्ग की कथा नहीं है, वहां तो मर्यादा मार्ग का प्रकार है, तो ठाकुर जी की इच्छा से चल रहा है। हमारे पूर्वजों के ऊपर ये जिम्मेवारी थी और उन्होंने द्वारकाधीश को अपना माना, तो हम भी उसमें जुड़ गए, जैसे श्रीनाथ जी में महाप्रभु जी के कारण वल्लभपुर जुड़ गया ऐसे, अन्यथा पुष्टि मार्ग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जिम्मेवारी माथे आ पड़ी है तो उसका उत्तर भी देना पड़ा। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपके किसी के ये मनोरथ हैं और वो ऋतु के अनुकूल हैं, ठाकुर जी को सुख दें ऐसे हैं, और वो सहजता से सिद्ध हो सके ऐसे हों, तो आप उनको करें। पर नहीं है, पहले एक बार उसकी लिस्ट बना के लोगों को दे दो और पीछे आप खोजते फिरोगे ये कौन करेगा, तू करोगे तू करोगे। अब लोगों का लोही पीने के लिए मनोरथ अधिक मास थोड़ी है, जब तुम अपने खीसे खाली करो, तुम आके इस मनोरथ को संपन्न करो, तो वो मनोरथ नहीं हुआ, वो तो अप्रेरित प्रियकरण नहीं हुआ, वो प्रेरणा पहले से ही दी जा चुकी है। तो अधिकतर ऐसा होता है, जितने भी आजकल सोशल मीडिया पर हम मिलते हैं, ये जो हवेली पंथ चलता है उसमें पूरे महीने की लिस्ट पहले से और उसके रेट भी बाहर आ जाते हैं कि इतने रेट में ये मनोरथ होगा। अब वो उसके मनोरथ ही हर बार सब जगह पहले से बुक नहीं होते हैं, पर मनोरथ अनाउंस हो जाते हैं। किसका मनोरथ वो तो पता नहीं है अभी, मनोरथी को बाद में खोजा जाता है कि अब तुम ये मनोरथ करो, हमें भगवान को यहाँ ठाकुर जी को अन्नकूट धराना है, हमको फूल का बंगला करना है, तो ये मनोरथ तुम करो। वो कह रहा है कि मुझे नहीं हो रहा है ऐसा मनोरथ, नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिन खाली जाएगा, अनाउंस कर चुके हैं। 5000 में तुम ठाकुर जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते, निकालो। तो अब वो जबरदस्ती, जैसे
गुंडे लोग जाते हैं ना उस तरह से मनोरथ करवाने के लिए गांव के ट्रस्टी अधिकारी वो लोग सब वैष्णव के घर घर घूमते हैं। वो रुमाल बांधते नहीं है गले में ऐसा, और ऐसे भाई लोग की तरह नहीं जाते हैं, उतनी बात है। बाकी जो करते हैं वो सब यही है, पीछे पड़ जाते हैं। और लोग रसीद पहले से बना के का तुम्हारा नाम नहीं, रसीद फाटी चुकी है ऐसा, और ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा नाम इसमें छप गया है, अब तुम नहीं दोगे तो हमको देने पड़ेंगे, दे दो हम तो यही कहेंगे कि हाँ करो। तो जब बेट द्वारका से पत्र आया तो मैंने ये कहा कि ये मनोरथ किसके हैं, तो उसने कहा कि राजू भाई मुखिया जी हैं, उसने ये लिस्ट बना के दी है। मैंने कहा राजू भाई 30 दिन के 30 मनोरथ करेगा? तो राजू भाई ने कहा कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, ये मुझे तो ये अपना इंचार्ज व्यवस्थापक है, उन्होंने ये लिस्ट दी थी कि मांडवी भेज कर आज्ञा मंगवा लो। मैंने कहा इंचार्ज को बुलाया, तो मयूर सिंह तू करेगा ये? कि नहीं मेरा भी कुछ, मैं तो वो तो महादेव जी का भक्त है, उसको द्वारका जी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो नौकरी करता है वहाँ, सरकार द्वारा अपॉइंटेड है। तो मयूर सिंह कहे कि मेरा भी मनोरथ नहीं है। तो मैं कहा ये है किसका मनोरथ? तो छोड़ो न यार मनोरथ, जो नित्य सेवा है वो करो शांति से, ये उपाधि लेने की जरूरत क्या है? तो ये देखो कि अप्रेरित प्रियकरण सख्य है। अब उसमें यदि इतनी भयंकर प्रेरणाएं चारों ओर से लगी हुई हो और फिर उसका नाम हम मनोरथ रखें, उसमें मनोरथ किसका रथ है और मन किसका है? किसी का नहीं है न किसी का मन है न किसी का रथ है। बिना बात ही ठाकुर जी बेचारे इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ लालू भट्ट जी ये कह रहे हैं कि अप्रेरितत्वन्तु विधायक वचन विषयत्वा भाव। अप्रेरितता ये है कि किसी ने कहा नहीं है। जैसे श्री गोसाई जी के प्राकट्योत्सव के वक्त ये बात आती है कि उत्सव आ रहा था और श्री गोसाई जी उस समय वहां नहीं विराज रहे थे, और रामदास जी ने कहा कि अब ये नवमी आ रही है, श्री गोसाई जी का प्राकट्योत्सव, तो क्या करें, कैसे उत्सव मनाएं? तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी से ही पूछो, उनको जो अच्छा लगे ऐसा हम करेंगे। ठाकुर जी का अब ये था श्री गोसाई जी के प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की बात तो बाद में है, पर क्योंकि ठाकुर जी में और श्री गोसाई जी में ऐसा सख्य है, तो हम जो ठाकुर जी के जो ज्यादा प्रिय है उससे हम पूछें कि तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन आ रहा है तो क्या कैसे मनाएं? तो ठाकुर जी ने कहा जलेबी सिद्ध करो, जलेबी सिद्ध करो। तो उस दिन सब लोगों ने मिलजुल के कोई मैदा लाया, कोई कुछ लाया करके और जलेबी बनाई। श्री गोसाई जी को सरप्राइज थी, वो पधारे तो उसका इतनी सब जलेबी, आज क्या है ऐसा पूछा। तो उन्होंने कहा कि आज तो आपका जन्मदिन है और ठाकुर जी ने जलेबी आरोग कर और उसका प्रसाद देकर आपका मुंह मीठा करवाना चाहा है ऐसे। तो आप देखो ये अप्रेरित प्रियकरण श्रीनाथ जी का श्री गोसाई जी के उत्सव मनाने के लिए प्रियकरण है कि ये ऐसा उत्सव मनाया, तो ये सख्य हुआ, ये मनोरथ हुआ। अब इस मनोरथ को हम यदि मनोरथ कहें, नवमी के दिन फिर से अगर हम जब जलेबी ठाकुर जी को अंगीकार कराएंगे तो वो सख्य हमारा नहीं है। वो सख्य भक्ति जो थी या सख्य का जो प्रकार था उसका ये संप्रदाय चला, तो अब हमारे लिए वो अप्रेरित नहीं रहा, हमारे लिए तो ये प्रेरित करण ही हुआ। और मानो कि हम किसी के दिमाग में ऐसा आए कि जलेबी की प्रेरणा तो श्रीनाथ जी ने दी थी, पर जलेबी के साथ रबड़ी थी कि नहीं ये हमें पता नहीं है। तो अब की बात अगर नवमी आई तो हम जलेबी के साथ ठाकुर जी को रबड़ी के साथ जलेबी अरोगाएंगे, तो अब ये अप्रेरित हो गया। पर मैं बोल गया और अब कोई करेगा तो फिर भी नहीं होगा केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि प्रेरणा इस तरह से है। अब प्रेरणा के दो रूप हैं, एक सजेशन है और एक आज्ञा है। हिंट देना, संकेत देना। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि नारंगी वाली रबड़ी, अब तो कह दिया, पर
यदि आप उसमें कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज कर रहे हो तो वो उसमें फिर से अप्रेरित हो गया। अब मैंने किसी के यहाँ ठाकुर जी पधारे और उसको मैंने ये कहा कि श्री गोसाई जी के उत्सव के दिन जलेबी ठाकुर जी को अंगीकार कराई जाती है, तो तुम रबड़ी भी साथ में श्री ठाकुर जी को भोग धरा करो। तो ये मेरी आज्ञा हो गई, ये प्रेरणा भी नहीं है, ये प्रेरणा आज्ञा रूप है, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं कि विधायक वचन विषयत्व। मैंने कहा, आज्ञा दी, और उसके अनुसार अगर आपको अब वो करना है तब तो फिर उसमें विधायक वचन आ गया। ऐसा कोई विधायक वचन नहीं है, और आपको ही अपने भीतर से ऐसी प्रेरणा हो रही है कि मैं ऐसा करूं तो प्रभु प्रसन्न होंगे, तब फिर वो सत्य होता है। तथा सती मंत्रादिभिरेव उपचाराः विधेयाः इति आग्रहो न रक्षणीयः। इसका स्वारस्य क्या निकला कि पूजन अर्चन इत्यादि में मंत्रोच्चार पूर्वक ही सभी उपचार करने चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ मंत्र शब्द का प्रयोग है, अपने यहाँ रीत की जो किताब है उसको यहाँ मंत्र स्थानी समझना है कि रीत की किताब में लिखा है कि इस दिन ये करना, तब तो विधायक वचन आ गया, उसमें आपका ये कुछ भी अप्रेरित प्रिय करणत्व नहीं हुआ। अगर कहीं कुछ लिखा नहीं है, जैसे अब अधिक मास चल रहा है, उसमें आपकी रीत की किताब में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस समय आप जो कुछ भी करोगे वो अप्रेरित करोगे। उसमें यदि आपने नित्य सेवा से अधिक कुछ भी किया, तो यानी अधिक प्रभु को प्रसन्न हो सके, सुख हो सके, ऐसा कुछ किया, उपद्रव की बात नहीं है, तो फिर वो अप्रेरित प्रिय कारण स्वरूप है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तदुक्तम निबंधे मंत्र मात्र पूजा परो न भवेदिति। इसलिए महाप्रभु ने तत्वार्थ निबंध में ये बात कही है कि मंत्र मात्र पूजा परायण नहीं होना चाहिए। तो केवल कहने का मतलब ये है कि जो रीत अपने यहाँ है, मंत्र का मतलब यहाँ सेवा की विधि या रीत परिपाटी, वो केवल जो अनाड़ी सेवा करता है, जिनको अपनी ओर से कभी कुछ प्रेरणा होती ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं, उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन देने के लिए वो रीत है कि इस दिन आपके गुरु परिवार में ठाकुर जी की सेवा में ऐसा ऐसा किया गया था, ऐसा आपको करना है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। आप चाहो तो आपकी परंपरा में ऐसा इस दिन हुआ था, उसे आप याद कर लो, देख लो। अगर आपको रुचि, उत्साह, अनुकूलता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा ही नहीं करके कुछ और भी कर सकते हो। पर जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे रसोई में जो जाता है, जिसकी जिम्मेवारी होती है, उसे ये प्रश्न होता है कि आज शाम को क्या बनाना, साग में कौन सा बनाना, ऐसा ये सबको प्रश्न होता है। तो कई लोगों के घर में, ज़्यादातर जो मास्टर वास्टर होते हैं व्यवसाय से, उनके यहाँ एक साप्ताहिक पूरा क्रम बना दिया जाता है कि सुबह नाश्ता में ये, भोजन दोपहर में ये, शाम को भोजन में ये, ऐसा फिक्स बन जाता है कार्यक्रम। तो क्या है, उसकी सहूलियत ये है कि भी सोचना नहीं पड़ता है, छोटा मोटा हेर फेर हम कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं मिली तो सुबह की शाम हो गई, शाम को सुबह हो गई, ऐसे। तो वो सहूलियत हो जाती है। उसके कारण जो सेवा की रीति है उसमें सभी मास के सभी दिन उसमें कौन सा वस्त्र, कौन से श्रृंगार, कौन सी सामग्री, ये सब कुछ उसमें लिख दिया जाता है। और वो लिखा जाता है, उसका ऐसा मतलब नहीं है कि अगर उस दिन आपने गुलाबी रंग के नहीं और पीले रंग के वस्त्र धरा दिए तो नरक में जाओगे, ऐसा उसका मतलब नहीं है। या भगवान रूठ जाएंगे, घर से पधार जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं है। मस्तक पर चंद्रिका लिख दी और उसकी जगह कतरा धरा दिया तो कोई प्रलय हो जाएगी, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो आपको एक सजेशन के रूप में है
बुद्धि कुंठित हो जाए तो आपको उसमें लिखा हुआ पढ़ा तो सोचना नहीं पड़े। कई लोगों में निर्णय शक्ति कम होती है, खास करके हमारे जब बच्चे लोग होते हैं वो सेवा में प्रवृत्त होते हैं, नियमित रूप से जो सेवा करने वाला वो उपस्थित नहीं होता हो, तब फिर उनको ये ज़्यादा समस्या होती है कि अब क्या करना, क्योंकि हमेशा बड़ों को पूछ कर ही किया गया होता है, और जब वो छोटे करते हैं तब बड़े अगर टोके नहीं तो बड़े क्या। तो हर बार उनके निर्णयों को बड़े करेक्ट करते हैं, इसलिए उनको निर्णय लेने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो अब वो पूछते हैं आज तो कुछ लिखा नहीं है तो क्या करें, तो किताब देख लो, उसमें जो लिखा हो वो कर लो ऐसे। पर मंत्र मात्र पूजा परो न भवेद, यहाँ लालू भट्ट जी ये कहते हैं कि सच्चे भक्ति ये है कि लकीर से फकीर हो रहे हो तो सच्चे भक्ति नहीं है, पोथी ना रिंगणा से। तो वो पोथी के रिंगणा अलग वस्तु है और खाने के रिंगणा अलग वस्तु होते हैं। तो मंत्र मात्र पूजा करो न भवे, ये सत्य भक्ति का यहाँ स्वरूप हुआ। जय जी, ये यहाँ जो विधायक वचन विषयत्व अभाव बता, विषयत्व को क्या मीनिंग है? विधायक वचन विषयत्व अभाव, हाँ, तो विषय को मीनिंग यहाँ क्या ले रहे हैं? यानी अप्रेरितता क्या है उसको यहाँ विषय होता है। यहाँ थोड़ा विराम कर लो, आपसे निवेदन बाद में करें।